Hello everyone. Good evening. Good evening, Vivek. Thanks for joining. Good evening, Harshit. Thanks for joining. Good evening, Virendra. Ashok ji, good evening. Let's wait for some people to join. Hello, Pramod. Good evening. Hello, Ram. Very good evening. Thanks for joining. Good evening, Balraj. Thanks for joining. Harshal, good evening. Hello, Nayana. Very good evening. Let's wait for some more minutes for others to join. Then we will start. Tell me, how, all of you, what is the plan for your weekend? Any special plan you guys have made for weekend? You can share with me. I can see your messages, all of your messages. You can share your plan for the weekend. You can ask for some good recipes, some weekend special recipes to your health coaches because weekend we generally go for the chit, so we can try something new. Ashok ji has told ki yes, tomorrow, whole day food outside. Great, great, great. I hope you will choose the good food only. And if you go for check, don't worry. Monday and Tuesday, you can, manage that. Okay. Yes. Harshit is telling that enjoy the weekend with caution of sugar intake. Yes, yes. True, true. I echo. Then Harshal ji is telling I am going to eat sizzler. Great. Any special platter do you prefer, Harshal? Sizzler mein? I like very much fish sizzler because I'm a Bengali, so I very much like the fish sizzler. Thanks for all of your response. It's very good to know that all of you have planned for weekend in advance. Okay, so let's start today's webinar. Okay, just allow me a few moments. Let me present my screen. So today's topic is ways to live diabetes free life. Okay, how many of you know कि किसको किसको पता था कि आज का टॉपिक क्या है? I can please raise your hands. I need to see in the chat section and response section. Yes. Acha, Harsha ji replied the chicken and fish sizzler. Thank you, Harsha. Yes, so today's topic is ways to live to diabetes free life. So देखते हैं इसमें क्या हम सीखेंगे और आज का जो सेशन होगा ना वो टू वे सेशन है. एवरी टाइम व्हेन आप लोग अपने हेल्थ कोचेस से बात करते हैं ना, इन एवरी काउंसलिंग कॉल्स जो हमारा कांटेक्ट होता है, जो बात होती है हेल्थ कोचेस से, वो हम हमेशा यही बारे में बात करते हैं कि हाउ यू गोना लीव अवर लाइफ. हर एक का टारगेट ये है कि डायबिटीज को कैसे हटाया जा सके अपनी जिंदगी से. बट मैटर ये है कि डायबिटीज तो एक ऐसा नहीं है ना कि इट्स अ डिजीज.
एंटीबायोटिक खा लिया, सर्टेन कोर्स कंप्लीट कर लिया मेडिसिन का, इट विल रिमूव, ऐसा नहीं है। सो क्या है, इट्स अ बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो हमें कुछ वेज है, कुछ पैरामीटर्स है जिसपे हमें काम करना होगा, फॉर अ लाइफ टाइम मैनेज करना होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, तो ही आगे जाके वी कैन लीव अवर लाइफ विदाउट डायबिटीज, और सर्टेन रेंज तक हम उसको घटा पाएंगे, दैट इज अवर गोल। सो आज इसी बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि कैसे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। So in today's topic, what we will cover. So the first thing is common risk factors. So could you all please tell me that आप अगर हमारे दिमाग में आता है कि हमें डायबिटीज है या कुछ रिस्क फैक्टर्स है, तो हम उसको क्या क्या उसमें हम कंसिडर करेंगे रिस्क फैक्टर्स में। लेट मी सी हाउ ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्स, कि आपको क्या लगता है रिस्क फैक्टर क्या है। मैंने पहले ही बोला था आज का सेशन 2 वे सेशंस होगा। मुझे आप लोगों से भी जानना है कि आप लोगों का भी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस बारे में हम रोज बात करते हैं हमारी एवरी काउंसलिंग कॉल पे। लेट्स सी योर रिस्पॉन्सेस in the chat section. Yes, we can see some of the response. Thank you for the answers. Stress, Sanjeev is replying stress. Definitely stress is a common risk factor. I can see so many things, sleep, eyes, kidney, liver. Yes, true, true, all the true. High sugar levels, eating habits. Yes, very true. So definitely, ये जो है हमारा common risk factors है, हम उसके बारे में आज पूरा बात करेंगे। First is healthy eating habits. ईटिंग हैबिट को हमेशा हमें सही रखना होगा। वी हैव टू वर्क ऑन अवर ईटिंग हैबिट्स। हम आगे इस बारे में बात करेंगे। बेसिक कुछ चीज समझ गए। ईटिंग हैबिट्स मतलब एक तो टाइम टू टाइम खाना खाना। नंबर 2 है कि हमेशा अपना जो गैपिंग है खाने का वो सही रखना है। 2 to 3 आवर्स का गैपिंग होना चाहिए। अब ये कोई स्टैटिक गैपिंग नहीं है, हर एक के डिफरेंट लाइफस्टाइल के बेसिस पर ये गैपिंग होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। एंड सेकेंडली द चॉइस ऑफ फूड, चूजिंग बिरयानी या चूजिंग दाल राइस और रोटी सब्जी, इट इज योर चॉइस। सो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में चॉइस ऑफ फूड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट इज पोर्शन कंट्रोल, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। आप खाना तो खा रहे हो, लेकिन कितना पोर्शन में खाना चाहिए, ये कितना लोगों को हमें कितना अंडरस्टैंडिंग है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइस हमें पता है, राइस इज नॉट रिकमेंडेड इन डायबिटीज, तो वो हमें कितना खाना चाहिए, वो क्वांटिटी में कम होगा। प्रोटीन हमें ज्यादा खाना चाहिए। कार्ब्स हमें थोड़ा कम करना होगा। फैट हमें एक्सक्लूड करना होगा, बैड फैट गुड फैट वो डिवाइड करके उसका हमें बैड फैट को एक्सक्लूड करना होगा। फाइबर थोड़ा ज्यादा खाना होगा। दैट विल बी पोर्शन कंट्रोल। वो भी हम इस पूरे आज के जो वेबिनार है उसमें हम सीखेंगे। नेक्स्ट इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो एक्सटेंसिव हो या माइल्ड हो, एवरी डे फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर 30 minutes। देन इज पोर्शन कंट्रोल, तो हमने बात किया। देन इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेट मैनेजमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओवरवेट और ओबेसिटी है, देन इट इज अ वेरी वेरी ट्रिगर्ड रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। तो इसको हमें हमेशा ओवरवेट और ओबेसिटी को शुरुआत में प्रिकॉशन लेके उसको एक सर्टेन रेंज तक लाना है। अदरवाइज अगर किसी को ओवरवेट ओबेसिटी है और डायबिटीज भी है या फिर नहीं भी है, देयर इज अ ग्रेट चांस टू रिक्वायर डायबिटीज एज वेरी सून। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ब्लड शुगर लेवल्स। काफी लोगों ने, आप लोगों ने आंसर किया ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटरिंग करना। सो यस, अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल्स एवरी डे हम मॉनिटर नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा शुगर का रीडिंग्स क्या है। जैसे हम HbA1c टेस्ट करते हैं ना पूरे 3 महीने के गैपिंग में, टू लेट अस इन्फॉर्म दैट कि हमारा रीडिंग्स क्या है, स्टेटस क्या है। वैसे ही हर वीक में एक सर्टेन पैटर्न में वी कैन गो फॉर द ब्लड शुगर चेकिंग एंड मॉनिटरिंग। सिर्फ चेक करना ही मतलब इज नॉट सफिशियंट, उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। डेफिनेटली योर हेल्थ कोच विल हेल्प यू टू मॉनिटर। देन मेडिकेशन एंड इंसुलिन, आप लोगों में से जो भी मेडिकेशन पे हो और जो भी इंसुलिन पे हो, दोनों जन को अपना मेडिकेशन का टाइमिंग, आप स्ट्रिप्स और आप इंसुलिन कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, उसका मैन्युफैक्चर डेट, हैंडलिंग, सब चीजों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा।
We will discuss. Just keep these things on mind. Then stress management. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है nowadays. मोस्ट ऑफ द यूजर से मुझे सुनने को मिलता है ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू स्ट्रेस, ऑब्वियसली ऑफिस प्रेशर या फिर पर्सनल प्रेशर, आई एम नॉट एबल टू फॉलो दिस थिंग्स. तो लग रहा है कि शायद इट इज अ प्रेशर, लेकिन पीछे द रीजन इज स्ट्रेस. इसकी वजह से आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए यू आर नॉट एबल टू फॉलो द रेजिमेंट. और उसका आउटकम क्या है? शुगर बढ़ जा रहा है, शुगर का रीडिंग्स हाई आ रहा है. नेक्स्ट इज क्वालिटी स्लीप. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर एंटायर डे के प्रोडक्टिविटी के बाद, काम करने के बाद, अगर आपको इनफ एंड सफिशिएंट रिक्वायर्ड स्लीप, रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट, प्लीज मार्क दिस टू वर्ड्स, अगर आपको नहीं मिल रहा है, देन डेफिनेटली ये आपके शुगर की रीडिंग्स पे कुछ ना कुछ असर तो फॉर श्योर दिखाएगा. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन. इन स्पाइट ऑफ एनी वेदर, वो समर हो, वो विंटर हो या मॉनसून हो, अपना हाइड्रेशन लेवल हमेशा सही और बराबर रखना है. अगर वाटर इंटेक कम हुआ, इट विल अफेक्टेड इन शुगर रीडिंग्स. नेक्स्ट इज रेगुलर मेडिकल चेकअप, डॉक्टर विजिट, काउंसलिंग सेशंस, अनदर जैसे कि हमारा ये वेबिनार या मास्टर क्लास सेशंस, ऑल दिस थिंग्स इंक्लूडिंग इन अ चेकअप, विजिटिंग. तो इसको हमें थोड़ा अटेंडेंस हमारा हमेशा सही होना चाहिए. हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे, देन ओनली विल गेट द गाइडेंस ऑफ आवर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. देयर इज सोशल सपोर्ट एंड एजुकेशन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उतना एजुकेटेड हो, उतना नॉलेजेबल हो कि क्या आपके लिए सही है. जो हम आपको गाइड कर रहे हैं उसको आप कैसे स्ट्रक्चर करो, कैसे डिजाइन करो और कैसे इम्प्लीमेंट करो, इसके लिए खुद एजुकेटेड होना, इस बारे में नॉलेजेबल होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. और लास्ट में तो हम बात करेंगे समरी क्यूए आप लोगों का हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. यस. सो कॉमन रिस्क फैक्टर्स, जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, हम जानते हैं पहले क्या क्या है इसमें. ओके, फर्स्ट इज हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज. बहुत सिंपल है इसका मतलब इफ एनी वन ऑफ योर एंसेस्टर्स या किसी एक या दो जन, मम्मी पापा को है या फिर दादा दादी को था, किसी जन को भी अगर एक फैमिली हिस्ट्री होता है ना कि मम्मी को डायबिटीज था या पापा को डायबिटीज था, तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको भी आगे जाके शुगर हो सकता है. तो ये एक क्वेश्चन है. अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है, आपकी कोई एंसेस्टर्स को, आपकी मम्मी पापा या फिर आपकी दादा दादी, किसी को भी डायबिटीज है, तो आपको हमेशा वो प्रिकॉशन लेना होगा कि आगे जाके आई मे कॉट डायबिटीज. तो मुझे अभी से ही जो डायबिटिक फ्रेंडली डाइट है, जो कॉशंस है, जो प्रिकॉशंस है, वो अभी से ही प्रैक्टिस करना होगा. मुझे डायबिटीज होगा उसके बाद मैं कंट्रोल करना चालू करूंगी, शुगर कट डाउन कर दूंगी, वैसा नहीं हम करेंगे. पहले से ही हमें सब कुछ कंट्रोल में करना है, तो जाके डायबिटीज नहीं होगा. प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. ये बात तो हमने सबने सुना है, बट अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहे तो दिस इज अ वेरी फिशियस एग्जाम्पल. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव अ बीएमआई. अच्छा, सेकंड टॉपिक में जाने से पहले डू टेल मी कि आप में से जो जो आप अभी अटेंड कर रहे हो मेरा क्लास यानी कि वेबिनार, उनमें से किसी मतलब सबको आप फास्ट जनरेशन डायबिटीज हो या फिर फैमिली में भी किसी को आपको था, मतलब डायबिटीज था, मम्मी पापा या फिर किसी और को, यू कैन टेल मी इन द चैट सेक्शन. कि ये जानना जरूरी है कि आपको डायबिटीज कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, हैबिट या फैमिली हिस्ट्री था. Balraj is telling yes, family history. हर्षित फर्स्ट जनरेशन पोस्ट कोविड. अच्छा, कोविड के बाद हुआ था हर्षित आपको? अच्छा अच्छा, ओके. यस यस, सो मेनी थिंग्स. संजीव इज नो फैमिली हिस्ट्री. केतुल का अच्छा ग्रैंडफादर हैविंग, अच्छा केतुल आपका ग्रैंडफादर, ओके. हलचंद्र का भी था फर्स्ट जनरेशन. सो फर्स्ट जनरेशन मतलब डेफिनेटली देयर इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. कुछ ना कुछ गलती तो आपकी तरफ से डेफिनेटली था. ठीक है, वी हैव टू अग्री विद दैट. फैमिली हिस्ट्री भी था, उसके बाद भी हमने कंट्रोल नहीं किया, वहां पे भी हमारी गलती है. तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, वो भी हमें उसके ऊपर काम करना होगा. थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सेस. ठीक है, लेट्स गो टू द सेकंड वन, जो कि है हैव अ बीएमआई. अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 23.0 kg पर मीटर स्क्वायर. जो हमारा बीएमआई है ना,
वो क्या है कि हम काउंट करते हैं ऐसे कि वेट इन केजी बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, बीएमआई। तो आपका वेट, एज, हाइट तीनों को मिला के हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। सो अगर किसी का बीएमआई इधर 23 और उसके ऊपर हुआ, देन इट इज अ ट्रिगर लाइन फॉर ओवरवेट। तो तभी हमें समझना चाहिए कि हम ओवरवेट हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा ईटिंग प्रैक्टिस सही नहीं है। आगे जाके ये ओवरवेट डायबिटीज हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है। एंड डायबिटीज नाउअडेज आर वेरी वेरी कॉमन। अगर हमारा ओवरवेट हो रहा है तो इज वेरी श्योर कि हमारे खाने में कहीं ना कहीं मतलब गलत हम खा रहे हैं। अब गलत में क्या है? फॉर श्योर हम रेस्टोरेंट फूड खा रहे हैं या फिर रिच खाना खा रहे हैं। रिच खाने या रेस्टोरेंट फूड या बाहर के खाने में शुगर बोलो, सॉल्ट बोलो, ऑयल बोलो, ये तीन चीजें तो भर भर के होता है, राइट? तो ये तीन चीजें काफी है ना आपकी वेट को गेन करने के लिए। और अगर हम जब हम डायबिटिक डाइट भी फॉलो करते हैं, पहले तो हम ये तीन चीजों को, शुगर को तो कट डाउन करते हैं, उसके बाद हम ऑयल के ऊपर काम करते हैं, बाकी चीजों के ऊपर भी काम करते हैं। तो इट्स अ वेरी मच ट्रिगर पॉइंट। हमें तभी समझना चाहिए कि ये अभी बॉर्डर लाइन पे है। फिलहाल हमें अभी के अभी पहले तो वेट रिडक्शन करना चाहिए। उसके बाद जो डायबिटिक फ्रेंडली चीजें हैं कि शुगर को कम खाना, लो जीआई फूड चूज करना, सारी चीजों को तभी से हमें फॉलो करना होगा, तब जाके इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। देन इट इज लीड एन इनएक्टिव लाइफस्टाइल। यहाँ पर देखो, आप काउच का मतलब एक पिक्चर दिया है, राइट? सो अभी ना एक टर्म बहुत ऐसा है कि लेजी लाइफस्टाइल, काउच पोटेटो हम बोलते हैं अभी जनरेशन वाइज, बहुत न्यू टर्म, न्यू एंड ट्रेंडी टर्म है। सो बेसिकली अभी जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है, बहुत अभी जो जनरेशन है ना, इसमें क्या है, इनएक्टिव। हम बहुत कम सेडेंटरी, वेरी एक्टिव, मॉडरेटली एक्टिव, ये हम लाइफस्टाइल के बारे में हमने सुना है। सो मोस्ट ऑफ अस अभी का जनरेशन जो है, हम लीड करते हैं इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब कोई भी हमारा फिजिकल एफर्ट नहीं है, ओनली वी आर सिटिंग समवेयर, वी आर डू मतलब सिटिंग जॉब्स है, लाइक वर्क फ्रॉम होम बोलो या वर्क फ्रॉम ऑफिस बोलो। हम खाना तो खाते हैं, कभी भी हमें जो भी खाना मिल जाए, टाइम का हमें पता नहीं चलता है, वी आर जस्ट ईटिंग अवर फूड। और हम बैठे रहते एक जगह पर, कोई फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल कुछ भी, हम एक्सरसाइज बोलो, वॉकिंग बोलो, कुछ नहीं करते हैं। वी आर थिंकिंग हमने जिम ज्वाइन कर लिया, चलो हफ्ते में हम 2 दिन या 3 दिन जिम जा रहे हैं, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। एवरी डे अपने हिसाब से, अपने एंड से कुछ मिनिमम अफोर्ट, वॉकिंग हो, योगा हो, प्राणायाम हो, आसन हो, यू हैव टू डू। हमेशा ऐसा नहीं कि आपको एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, योगा, डंबल लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, कार्डियो, ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन अपने आप को एक्टिव रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्वॉल्व हो पूरे दिन में। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा आप 4-5 मिनट नॉर्मल वॉक करो, ऐसा नहीं कि आपको दौड़ना है, आप कॉरिडोर पे, बेडरूम पे नॉर्मल वॉक करो, तो उससे भी काफी हद तक आपको हेल्प मिल जाता है। नेक्स्ट इज हैव अ हाई ब्लड प्रेशर। जब भी आपको बीपी, आप चेक, जब भी बीपी हाई होता है, डेफिनेटली सिम्टम्स तो दिखता है। तो इन दैट केस जब भी बीप हाई होता है और आपको सिम्टम्स दिखता है, तो आपको चेक कराना है, ओके, इमीडिएटली। अगर आपके घर में मशीन हो, वेरी गुड, यू कैन चेक। अगर नहीं भी हो तो इन दैट केस यू कैन एक्चुअली बाहर, मतलब सामने जो फार्मेसी है वहां से चेक कर लो अपना हाई प्रेशर। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लो। जब भी आपका हाई प्रेशर दिखेगा या ऐसा कंडीशन हो रहा है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक दोनों ही हाई है, प्लीज थिंक ऑफ दैट। ये सब कुछ ना इंडिकेशन है कि आगे जाके चांसेस बढ़ रहा है, तभी आपको समझना है। नेक्स्ट इज हैव अबनॉर्मल ब्लड कोलेस्टेरॉल एंड लिपिड लेवल्स। जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है, HbA1c का हम जब टेस्ट करते हैं ना, तो शुगर के लिए जो हम HbA1c टेस्ट करते हैं, वहां पर वो कोलेस्टेरॉल और लिपिड लेवल्स, सारी चीजें का भी आता है, HDL, LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो वो जो रीडिंग्स है ना, वो भी हमेशा हमें ख्याल रखना पड़ेगा। कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ जाता है तो स्किन में कुछ इफेक्ट दिखता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है, कभी कभी कुछ इफेक्ट दिखता है, और आपको खुद को भी फील होगा, आप फैटी हो जाओगे, आपको वेट गेन हो जाएगा। तभी आपको जब भी दिख रहा है कि नहीं, अबनॉर्मल कोलेस्टेरॉल लेवल्स आ रहा है, इट्स एन इंडिकेशन कि आगे जाके यू मे गॉट डायबिटीज। तो वहीं पर हमें कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट इज हैव अ हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। इट इज फॉर द वुमेन्स जो कंसीविंग के पीरियड में आप लोग हो, या फिर आगे जाके यू हैव अ प्लान टू कंसीव, उन लोगों के लिए है।
प्रेगनेंसी के जो एंटीनेटल पीरियड है तब अगर आपको डायबिटीज हो रहा है या फिर डिटेक्ट हुआ है, जेस्टेशनल डायबिटीज बेसिकली क्या है ना, आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस. इट इज हैपन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड एंड पोस्ट योर डिलीवरी इट इज टोटली डिस्टिंग्विश्ड. लेकिन फिर भी अगर जेस्टेशनल डायबिटीज आपको हो रहा है ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आगे भी चांसेस है, इधर मुझे फर्दर डायबिटीज हो सकता है या मेरी बेबी को भी हो सकता है. देयर इज अ वेरी मच चांसेस. तो तभी से भी कंट्रोल करना होगा. आई नो प्रेगनेंसी में रेजिस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, येट वी हैव टू कंट्रोल. और सिर्फ डिलीवरी हो गया डायबिटीज चला गया ऐसा नहीं होगा, उसके बाद भी पोस्ट नेटल पीरियड में और बेबी का 1 ईयर हो जाने के बाद भी आपको एंटायर द पीरियड एक दिमाग में रखना है कि मुझे डायबिटीज एक टाइम पे हुआ था, वो जेस्टेशनली था लेकिन हुआ तो था. तो हमें वो कंट्रोल करना होगा ताकि आगे जाके कभी भी नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज मुझे ना हो. फाइन. नेक्स्ट इज एज, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 years. ये एक इंडिकेटर है. 40 साल के बाद एक टेंडेंसी होता है ड्यू टू आवर बैड लाइफस्टाइल. इट इज नॉट आवर, इट इज ओनली द रीजन कि हमारा लाइफस्टाइल खराब है एंड वी आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ आवर लाइफस्टाइल. इसीलिए 40 साल के बाद देयर इज सो मच टेंडेंसी. बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल अभी इंडियन में जो है 40 साल के बाद इज अ वेरी मच कॉमन एज. तो वो टाइम पे भी हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा. फाइन. नेक्स्ट इज हैव impaired ग्लूकोज टॉलरेंस और impaired फास्टिंग ग्लूकोज. जब आप टेस्ट करवाते हो रीडिंग्स में जब फास्टिंग ग्लूकोज आता है विच इज अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे आता है कम या ज्यादा, तो डेफिनेटली इट इज अबाउट टू थिंक. तो आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट, जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट. हाँ. Yes. So healthy eating habits. Let's have a look to healthy eating habits. First is importance of balanced meal. Eating balanced meal is crucial for managing diabetes. It helps to regulate blood sugar levels and provides essential nutrients for overall health. ये जो लाइन है हमें सबको मालूम है कि हमें अगर हम अच्छा खाना खाएंगे इट मीन्स डेफिनेटली क्रूशियल फॉर मैनेजिंग डायबिटीज. ब्लड शुगर अगर खाने के ऊपर डिपेंड करता है. आई ऑलवेज डू टेल माई यूजर्स की फास्टिंग और पीपी आप जो कर रहे हो वो पूरा ना ऑलमोस्ट वो खाने के ऊपर डिपेंडेंट होता है. सो अगर जो भी खाना आप खा रहे हो उसके ऊपर आपको ब्लड शुगर चेकिंग करना होता है. तो फास्टिंग अगर आपका सही आ रहा है और लंच में अगर लंच के आगे आपने फास्टिंग किया, ब्रेकफास्ट के आगे आपने फास्टिंग किया, तो डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स आया. पोस्ट पैंडल भी डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स आया. डेफिनेटली योर फूड इज नॉट इनफ, इट इज नॉट कन्वीनियंट. इसीलिए रीडिंग्स में गलत आ रहा है. तो देन वी हैव टू चेक कि अच्छा ठीक है लंच में गलत आ रहा है तो वी हैव टू वर्क ऑन द लंच पाथ. एंड बैलेंस मील, बैलेंस मील मतलब क्या है, अगर आप मोस्ट ऑफ द इंडियंस वी डू अवर स्टेपल राइस या रोटी होता है. सो राइस या रोटी अगर आप जो खा रहे हो वो कंट्रोल में होना चाहिए. आई डू टेल मोस्ट ऑफ द पीपल, ये कोई जेनेटिक नहीं है, आई एम टेलिंग यू. आप हेल्थ कोच से बात कर लेना, लेकिन आई एम गिविंग अ स्टैंडर्ड एग्जांपल. जैसे कि मैं 30 से 40 ग्राम रॉ राइस के अलावा इससे ज्यादा मैं अलाउ नहीं करती हूँ अगर आप राइस खा रहे हो तो. तो थोड़ा राइस, देन यू कैन टेक 1 रोटी. Ghee is a good cholesterol, good fat. You can add a little ghee on your roti. Then dal, sabji, salad is very important. Dahi is probiotic is very important. तो ये सब चीजों मिला के एक बैलेंस प्लेट होता है. अगर ये आप ये बैलेंस प्लेट ले रहे हो सही टाइम पे एवरी डे, तो ही आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होगा. अगर नहीं हो रहा है डू चेक. ये जो मैंने बोला है बैलेंस प्लेट का जो कॉन्सेप्ट मैंने डाला है आप लोगों के दिमाग में, वो पर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत आप कर रहे हो फॉर श्योर. नेक्स्ट इज लिमिटिंग शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड. आई होप आप सभी जो अभी हमारे डायबिटीज प्रोग्राम पे हो, आप लोग बाहर का खाना, प्रोसेस फूड, शुगर एकदम नहीं खा रहे हो. आई एम डैम श्योर. अगर आप में से कोई भी खा रहे हो प्लीज डू स्टॉप इट इमीडिएटली, क्योंकि इससे बहुत ब्लड शुगर्स में कॉज अ वेरी ग्रेट स्पाइक्स इन द ब्लड शुगर्स एंड लीड टू सेवरल कॉम्प्लिकेशंस. इसका कोई ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा. सो प्लीज डू वर्क ऑन दिस थिंग. Next is emphasis on whole grains, lean proteins and vegetables. एक हेल्दी डायबिटीज फ्रेंडली डाइट में क्या क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स. प्रोटीन आर द आवर फोकस. प्रोटीन हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स बार, ये सब मील जो होता है ना सब में प्रोटीन ओरिएंटेड होना चाहिए. हमारा जो डायबिटीज डाइट होगा वो किसके ऊपर होगा?
हाई प्रोटीन यानी कि प्रोटीन रिच, फाइबर रिच, moderate carbohydrate, low fat, diabetic diet. That should be our diet code for diabetes, diabetic friendly diet. I'm repeating: protein rich, fiber rich, moderate carbohydrate और low fat. ठीक है. कार्ब्स भी हमें चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए. 60 to 65% कार्ब्स हमें चाहिए, बट इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. अब वो कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म क्या है? यू हैव टू रीच योर हेल्थ कोचेस फॉर द इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग. Then come to the next slide. Fine, just allow me one moment. Huh? सो इम्पोर्टेंस ऑफ वेट मैनेजमेंट हमने पहले ही बात किया. वेट मैनेजमेंट के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा. मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट इज वेरी मच क्रूशियल फॉर मैनेजिंग डायबिटीज अफेक्टिवली. जहां पे आपको लग रहा है कि आपका बीएमआई ज्यादा है, वेट बढ़ रहा है, देन एंड देयर यू हैव टू चेक योर डायबिटीज. एक्सेस वेट गेन कैन इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? हमारा बॉडी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो इंसुलिन हमारा मसल जो है ना, वो यूज नहीं कर पाता है जिस तरीके से उनको यूज करना चाहिए. ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या होता है? वो शुगर का जो होता है ना रीडिंग्स, वो बढ़ जाता है. मसल स्लॉथ हो जाता है, ठीक से काम नहीं कर पाता है. इसीलिए वेट क्या करता है? इसको दबा देता है. इसीलिए हमेशा वेट को मैनेज करना चाहिए ताकि आगे जाके मसल एकदम ठीक तरीके से रेसिप्रोकेट कर पाए. इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ठीक तरीके से होल मसल में सर्कुलेट हो पाए, तो ही जाके ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगा. And strategies for weight management including like adopting balanced diet, engaging in physical activity. फिजिकल मोबिलिटी भी आपकी सही होना चाहिए. प्लीज डू चेक योर फिजिकल मोबिलिटी विथ योर हेल्थ कोचेस की किसके लिए कौन सा फिजिकल एक्टिविटी विल बी अप्रोप्रिएट, उसके हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी आप करो. And seeking support from your health coaches, it is very very important. So weight management is a key part we need to do primarily for controlling diabetes. Next is monitoring blood sugar levels. So why regular monitoring is crucial? ठीक है. आप में से आप मुझे रिप्लाई करो सब लोग कि आप लोग कैसे पैटर्न फॉलो करते हो अपना शुगर चेकिंग के लिए. हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, कोई हर एक दिन करते हो, तो आप पर्टिकुलरली क्या पैटर्न फॉलो करते हो? लेट मी नो योर्स. सबका मुझे जानना है, फिर आई एम टेलिंग यू कि मैं कैसा प्रेफर करती हूँ, मैं क्या सजेस्ट करने वाली हूँ. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. हाँ, डू वरी. हर्षित इज टेलिंग अच्छा बिया वीकली वंस, मतलब हफ्ते में एक बार आप करते हो, राइट? अच्छा, फास्टिंग और पीपी करते हो या फिर रैंडम आप करते हो? Balchandra, also same for you. Pramod is telling daily fasting and pee. Very good. Good that Pramod you are keeping check on your blood sugar levels. हफ्ते में एक थोड़ा कम हो गया, थोड़ा थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा. अच्छा, केतुल ट्वाइस इन अ मंथ, तो केतुल थोड़ा बनाना पड़ेगा. इट्स वेरी, मतलब आपको भी पता है ना, बहुत कम है ये, इससे मॉनिटरिंग नहीं होगा. बोथ फास्टिंग एंड पीपी. बालचंद्र, यस, इट्स गुड गुड. Shaktiधर वीकली, हाँ हाँ, आई हैव सजेस्टेड यू ना, सो यू आर फॉलोइंग दैट. गुड दैट यू आर फॉलोइंग दैट. बलराज ऑल्टरनेटिव डेज, हाँ वो भी चलेगा ऑल्टरनेटिव डेज पे अगर आप करते हो. थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर रेस्पॉन्सेज. अलग अलग रेस्पॉन्सेज मिल रहा है, तो इट इज वेरी गुड कि आपको मतलब जैसे गाइड मिला है वैसे आप कर रहे हो. अगर नहीं भी है फिर भी डू डिस्कस विथ योर हेल्थ कोचेस. यहाँ पर क्या है ना, वी नीड टू नो कि व्हाई रेगुलर मॉनिटरिंग इज वेरी क्रूशियल. क्योंकि रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्प्स टू ट्रैक ब्लड शुगर लेवल्स एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स और ट्रेंड्स. आप आज दाल चावल सब्जी खा रहे हो, कल आपने पोहा लिया, परसों आपने बिरयानी लिया, उसके बाद डे आफ्टर परसों आपने कुछ और ले लिया. हर एक खाने के ऊपर आपका शुगर लेवल अलग अलग होगा, राइट? सो आप शुगर चेक करके भी एक कंक्लूजन में आ सकते हो कि दिस फूड इज गुड फॉर मी, दिस फूड इज नॉट गुड फॉर मी. So it allows, for timely adjustment in diet, exercise and medication to maintain stable blood sugar levels. दवाई लेने के बाद चेक करने का एक अलग रीडिंग्स आता है, दवाई के पहले रीडिंग्स अलग होता है. लंच ओरिएंटेड फास्टिंग में ब्रेक अगर पीपी आप चेक करोगे तो अलग रीडिंग आएगा. एंड ब्रेकफास्ट ओरिएंटेड अगर आप चेक करते हो तो अलग रीडिंग आएगा. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक इन अ डिफरेंट वे. जो मैं प्रेफर करती हूँ ना, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई डू प्रेफर टू माय यूजर्स की. आप ना पूरे महीने में ऑल्टरनेटिव बेस पे ऐसा कर सकते हो कि एक फास्टिंग और पीपी हमने ब्रेकफास्ट ओरिएंटेड कर लिया, मतलब ब्रेकफास्ट के आगे
एंड ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद। नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे पे यू कैन गो फॉर लंच ओरिएंटेड फास्टिंग एंड पीपी, मतलब लंच के पहले फास्टिंग एंड लंच के बाद पीपी 2 घंटे बाद, ओके। एंड देन फॉर द डिनर यू सेम प्रोसेस, डिनर के पहले फास्टिंग और डिनर के बाद पोस्ट प्राइमरी। और चौथे हफ्ते में या फिर कभी भी यू कैन डू द रैंडम। सो दिस इज हाउ, अगर आप बार बार ऐसे घुमा फिरा के लंच ब्रेकफास्ट डिनर सबके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना, दे विल गेट एन क्लैरिफाइड आइडिया कि काम कहाँ पे करना है, ब्रेकफास्ट गलत हो रहा है, लंच गलत हो रहा है या डिनर गलत हो रहा है। तो इन दैट वे यू कैन एक्चुअली मैनेज द थिंग्स, ओके। अब टाइमिंग कितना गैपिंग होगा, कितना कितना गैपिंग रखना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल काम पैटर्न के बेसिस पर, मतलब आपका जो लाइफस्टाइल है, ऑफिस टाइमिंग्स, वर्क टाइमिंग, स्लीपिंग टाइमिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लीज टॉक टू योर हेल्थ कोचेस। लेकिन ये जो बेसिक चीज है कि अलग अलग खाने के ऊपर आगे पीछे में फास्टिंग और पीपी करना है, दैट यू कैन फॉलो। टाइमिंग के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, प्लीज टू टॉक टू योर हेल्थ कोच अबाउट दैट। लेकिन अलग अलग खाने के बेसिस पर आप कर सकते हो। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेडिकेशन एंड इंसुलिन। डायबिटीज मेडिकेशन पे आप जो भी आप मेडिकेशन आप लोग लेते हो, प्लीज टू टेक योर मेडिकेशन ऑन अ टाइम टू टाइम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गलत दवा टाइम पे दवाई लेना, मिस कर जाना, इट विल लीड हाई शुगर रेंजेस। डॉक्टर विजिट है, आप डॉक्टर के पास जाओ, आप बोलो कि हाँ मेरा डाइट से मेरा भी कंट्रोल हो रहा है, डोजेज कम करना है या ज्यादा करना है, प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर। चेंजेस लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही चीज बहुत दिनों तक, बहुत ईयर्स अगर चलता रहेगा तो चेंजेस विजिबल नहीं होगा, नहीं दिखेगा। इसीलिए आप जो भी ओरल मेडिकेशंस पे हो ना, जो भी आप लोग ओरल मेडिकेशंस पे हो, आप प्लीज डू टॉक योर डॉक्टर कि कैसे क्या चेंजेस करना है। प्लीज शो देम योर कंसर्न्स कि आप इतना हेल्थ कॉन्शियस हो, डाइट भी आप कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको गाइडेंस मिल जाएगा। और जो भी गाइडेंस मिलेगा उसको फॉलो करना है, मिस नहीं करना है, तो इट इज योर फॉल्ट डेफिनेटली। फाइन। इंसुलिन के लिए भी सेम यूनिट डोजेज, प्लीज चेक विथ योर डॉक्टर्स कब कितना क्या लेना है और कैसे मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज, जस्ट अलाउ मी one moment, my slide is not going on next. Stress management. I think someone has initially at the start of the webinar, they have told that stress management is a common risk factor. Definitely stress can significantly affect your blood sugar levels in individuals with diabetes, and making is very important. So stress को मैनेज करना, जैसे कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। I have sometimes I do suggest some of the mudras, meditation mudras, prana mudras, hands mudra to my users, because it is very very good. I found it very very good for controlling the sugar parts. So if you need this mudras videos, please do talk your health coaches. I will provide them. They can share with you. Okay. And also एक टिप्स मैं देना चाहूंगी ना, हम खाने के बारे में तो बात करते ही है, इट इज वेरी कॉमन। हम जो नहाने का पानी होता है ना, बैथिंग वाटर, उसमें आप हफ्ते में 2 या 3 दिन कॉफी पाउडर, सिंपल हाफ या 1 टीस्पून, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, ज्यादा नहीं डालना है तो एक टैंगी चिपचिपा हो जाएगा। So just 1.5 teaspoon you can add the coffee powder, and दिन में पूरा one time पे you can bath with that water. So that can help. It is something another management style for stress management. तो ये आप फॉलो कर सकते हो. This is a tip apart from the diet. Next is quality sleep. Lack of quality sleep can negatively impact your blood sugar levels, and definitely it will risk that chance of sugar diabetes. So improve your sleep quality is very very important कि आपका एक proper sleep schedule हो. रात में एटलीस्ट, रात का जो हमारा स्लिप होता है ना, दैट शुड बी साउंड स्लिप एंड एटलीस्ट हैज टू बी 8 to 9 hours. एकदम प्योर स्लिप होना चाहिए. पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखे, एक प्रॉपर स्लीपिंग टाइम हम सबके लिए होना चाहिए. सॉरी, अगर वो स्लीपिंग टाइम आप मेंटेन नहीं करोगे, आप कितना भी खाना खा लो, मैनेज कर लो, एक्सरसाइज कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आगे एक सर्टेन टाइम के बाद दिस स्लीप पैटर्न, क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होने की वजह से यू may suffer, and that is an issue. तो स्लिप टाइमिंग शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कोशिश करना है कि स्लिप टाइमिंग को कंफर्टेबल कैसे बनाए. ठीक है, पहली बात तो हमें शेड्यूल फिक्स करना होगा कि इस टाइम पे हम सोने जाएंगे, दैट विल बी माय वेकअप टाइम, दैट विल बी माय गो टू बेड टाइम. एंड उसके साथ कुछ टिप्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि
5 बजे के बाद, 5 PM के बाद हम कोई भी कैफेन, अल्कोहलिक प्रोडक्ट या फिर कोई चीजों को नहीं अवेल करेंगे। कोई भी बेवरेजेस, सॉफ्ट हार्ट कोई भी बेवरेजेस हम उसको अवेल नहीं करेंगे। हम बेड पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके नहीं जाएंगे। बेड पे जाने से पहले वी कैन गो फॉर रिलैक्सेशन, वी कैन गो फॉर मेडिटेशन, तो हमारा स्लीप अच्छा होगा। वी कैन प्ले शटल म्यूजिक दैट कैन हेल्प फॉर गुड स्लीप। तो ये कुछ कुछ प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस। नेक्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन। मैंने पहले ही बोला था, इन स्पाइट ऑफ एनी सीजन, समर हो चाहे वो मॉनसून हो, कोई भी सीजन हो, मेरी एकदम हाइड्रेटेड रहना, पानी ठीक से पीना पूरे दिन में, एक सर्टेन अमाउंट तक पानी, 3 से 4 लीटर पानी वी डू नीड एज एन अडल्ट। तो वो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि वो एकदम ऐसा नहीं है कि पानी ही सिर्फ पीना है, द होल फ्लूइड इंटेक। अगर हम स्मूदी ले रहे हैं, अगर हम छाछ ले रहे हैं, कोई हम जीरा मेथी वाटर लेते हैं, कोई बॉटल गर्ड जूस लेते हैं, कोई भी चीज हम ले रहे हैं, तो पूरा जो फ्लूइड इंटेक होगा दैट शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 लीटर फॉर एन एंटायर डे। जैसे कि 10-12 ग्लास तो मिनिमम होना चाहिए। तो पानी डेफिनेटली, वाटर इज अ प्राइमरी चॉइस। तो हमें हाइड्रेटेड रहना है थ्रू आउट द डे, बिकॉज हाइड्रेशन कैन ऑल्सो हेल्प to prevent complications associated with diabetes. So aim to drink at least 10 to 12 glasses of water per day. हाँ, थोड़ा कोशिश करना है कि शाम के बाद जब भी प्यास लगे उसके उसके हिसाब से आप पियो, लेकिन शाम से पहले जितना भी पानी हो सके यू कैन टेक, आई मीन टोटल फ्लूइड इंटेक जो होना चाहिए। आप में से लोग जो भी हो, आप कितना पानी लेते हो, मतलब पूरे दिन में, ईच ऑफ वन ऑफ यू कितने ग्लासेस आप लेते हो? लेट मी नो योर रिस्पॉन्सेस। Yes, I can see so many of responses like 10 glass, 12 glasses, 5 glasses, 3 liters. Good, good. Uh, yes. Two, Barraj, I didn't understand. 2 liters आपने डाला है, probably. थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, okay? 16 glasses, Pramod. Very good. Good that you all have responded. Thanks for your presence. पानी के हिसाब से आप सही जा रहे हो सब लोग. यही continue करना है, okay? For the entire of the season. Next is regular medical checkups. जब भी हमारा टाइम डेट है डॉक्टर का डेट्स, काउंसलिंग डेट, हमारे हेल्थ कोचेस के साथ आप लोगों का काउंसलिंग डेट्स रहता है ना, डू नॉट मिस द डेट, डू अटेंड द डेट्स। रूटीन चेकअप्स विल डेफिनेटली प्ले अ वाइटल रोल इन मॉनिटरिंग। ये जो हम मॉनिटरिंग में काउंट करते हैं ना, चेकअप्स, अटेंडेंस, सब कुछ मॉनिटरिंग में काउंट होता है। रेगुलर विजिट्स, स्टेइंग प्रोएक्टिव, अपने हेल्थ के बारे में खुद से डॉक्टर से आप पूछो कि कितना आगे क्या करना है, डोजेज कम करना है, ज्यादा करना है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। जितना आप दिखाओगे इंटरेस्ट, उतना ही आपका प्रोएक्टिवनेस आपको हेल्प करेगी मॉनिटरिंग करने। नेक्स्ट इज सोशल सपोर्ट एंड एजुकेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी एजुकेटेड अबाउट योर ओन कंडीशन। सो एजुकेशन अबाउट डायबिटीज इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट। तो पहली बात है ही। नंबर 2 की और आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, अगर आप खुद नॉलेजेबल हो तो आप दूसरों को भी ये अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो कि आप भी करो, मैं भी किया है, मेरा भी इफेक्ट दिख रहा है। सो प्लीज यू ऑल डू, क्योंकि ये सोसाइटी, इसको ही हम सोशल सपोर्ट, सोशल गैदरिंग बोलते हैं, सोशल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। टू मेक द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड अबाउट देयर कंडीशन, इन्फॉर्म देम अबाउट द देयर हेल्थ, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज डेफिनेटली वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स अबाउट कि कैसे क्या करना चाहिए, शुगर का मैनेजमेंट, सब कुछ हमने पूरे आज के वेबिनार में सीखा है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि टेक अवे आपको क्या लग रहा है आज के सेशन का। हमें काम किस किस चीज के ऊपर होना चाहिए? आप लोगों में से किसी, मतलब आप मुझे बताओ सबको कितना कितना याद है कि हमें काम किसके ऊपर करना चाहिए। ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया है अब तक, क्योंकि हमारा गोल क्या है, मैनेजिंग डायबिटीज रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कॉशन एंड विजिलेंस। हर स्लाइड पे, हर एक टॉपिक में हमने एक वर्ड बहुत बार यूज किया है, कॉशन एंड प्रिकॉशन। अगर हमें कॉशन मालूम होगा तो ही हम प्रिकॉशन लेंगे। सो बाय फॉलोइंग ऑल द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज डिस्कस इन दिस टोटल क्लास, दैट विल डेफिनेटली, अगर आप सब इसको फॉलो करते हो, नॉट ओनली फॉलो,
हमने वेबिनार में आए, हम लोग सुन लिए, हम लोग ने वेबिनार अटेंड किया, हो गया? नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, नहीं होगा। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ट्राई करो, गलती करो, नो इशू। टॉक टू योर हेल्थ कोचेस। जो भी मैं डिस्कस किया है उसके हिसाब से आप ट्राई करो, बात तो करो, ट्राई करो। मैंने हैंड्स मुद्रा के बारे में बात किया, हाइड्रेशन के बारे में बात किया, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात किया, मेडिकल विजिट्स के बारे में हमने बात किया, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, वेट के ऊपर हमने बात किया है। तो सब चीजों को मिला के होता है। कोई पर्टिकुलर एक भी चीज अगर आप फॉलो करोगे और आप सोचोगे कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, इट विल नॉट हैपन। सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके हमें प्रैक्टिस करना होगा, हमें अपने रेजिमेंट में उसको इंक्लूड करना होगा। नॉट ओनली इंक्लूड, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना होगा। 2 या 3 महीने हम है प्रोग्राम पे, हमने फॉलो किया, उसके बाद खत्म, ऐसा नहीं होगा। हमें उसको ऊपर उसको फिर से हमें वो कंसिस्टेंसी उसको फॉलो करना होगा, तब जाके हम उसको एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा पाएंगे और उसको हम फॉलो कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडरेशन जैसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मैनेजमेंट में, हर एक चीज को मॉडरेट अमाउंट में खाना या मैनेज करना, उसी तरह कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप कर रहे हो, आपका मेहनत है ना, आपका ऑल ऑफ योर एफर्ट्स, पहले एक सर्टेन टाइम के बाद वो एफर्ट जो भी आपने किया है उसको पकड़ के रखो विद द हेल्प ऑफ योर हेल्थ कोचेस। देखो बॉडी कैसे रेसिप्रोकेट कर रहा है, उसके बाद देन गो फॉर फर्दर रिडक्शन। बहुत जल्दी हमें कुछ भी नहीं करना है। आई वुड सजेस्ट यू, प्लीज गो फॉर gradual reciprocation. Don't run behind the very fast things and fast drastic changes. धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके अगर आपकी बॉडी चेंज होगा, वेट मैनेज होगा, स्लीप मैनेज होगा, स्ट्रेस मैनेज होगा, टाइमिंग मैनेज होगा, आप खुद नॉलेजेबल होगी, खुद से आपका एक डेडिकेशन आएगा, मोटिवेशन आएगा, आई हैव टू डू, देन ओनली इट विल हैपन। नहीं तो ये सिर्फ प्रोसेस ऐसा ही रहेगा, आई एम गिविंग यू सजेशन, यू आर लिसनिंग। तो इससे हमें हम खुद को भी मोटिवेट करना होगा, क्योंकि वॉट एवर आई कैन ओनली सजेस्ट यू एज अ हेल्थ कोच, एज अ डाइटिशियन, लेकिन करना तो आप लोगों को ही है। सो आप जो भी करोगे उसके ऊपर ही आउटकम दिखेगा। सो आई होप टुडे सेशन इज यूजफुल फॉर यू, इज इंसाइटफुल फॉर यू। आप लोग को समझ में आया है व्हाट आर द डिजाइन्स, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। फाइन, सो कम टू योर Absolutely. Absolutely, Madhurima. I think it was a great discussion, and we all have understood that what are the basics of managing diabetes. Let us go to the questions of our AkiCheck Wealthy sure. family, and let us understand that what is it that they want to know from us. So, first of all, Naveen Sharma ji is saying good evening. Good evening, Naveen ji. Thank you so much for joining today's session. If you have any questions, please drop in the chat box. We have Mr. Harshal Mankar, who is asking if my random sugar is 127, what should I do? आपका रैंडम 127 आपने चेक किया, तो फास्टिंग और पीपी भी आप थोड़ा चेक कर लो हर्षल, फर्स्टली, ठीक है? 127 is not bad at all. I'm telling you, it is in satisfactory range, but फिर भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा। बट आपका वेट कितना है, प्रीवियस शुगर का रीडिंग्स कितना है, उससे कितना कम हुआ है, फिलहाल आपका क्या पैटर्न है ऑफ डाइट मैनेजमेंट, ऑल द थिंग्स, उसके ऊपर ये 127 जस्टिफाइड है या नहीं, वो थोड़ा दिखना पड़ेगा। All right. I think the best thing, Harshal ji, for you is talking to your health coach, because she has created a personalized journey for you, and this journey is going to help you take care of your health. All right. So we have one more person. That person has not mentioned her name. So thank you so much for joining. It's a request to everyone. Please mention your name when you're asking questions. She wants to know that you said about weight loss and how weight loss helps. So if you can give 4 5 tips on how weight loss helps in diabetes management. Sure. Firstly, the primary focus which should be weight management. And weight management is not only weight loss. Agar weight gain can be also weight management. But your question is regarding weight loss. So let me answer you like that. First thing is your choice of your food. You have to choose your food very wisely. Which food is low in GI, that you have to choose. That you have to include in your meal plates. आप lunch, dinner, breakfast जो भी कर रहे हो, that the food should be low in GI. ठीक है? That will not
हेल्प, लो इन जीआई होगा तो डायबिटीज के लिए भी अच्छा है और वेट गेन भी नहीं। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा नहीं खाना है एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके 2 to 3 आवर्स गैपिंग में जो गुड फूड्स है उसके हिसाब से आप टाइमिंग मैनेज करो। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर। इफ यू कैन मैनेज यू कैन गो फॉर नाइट टाइम स्नैक्स ऑल्सो। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके अगर आप खाना खाओगे तो कोई भी हेवी खाना नहीं होगा, एक ही टाइम पे आप नहीं खाओगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको खाना खाना है, तो इट विल बी मैनेज्ड। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी फिजिकल मोबिलिटी अप टू द मार्क है, then please ask your health coach about such physical exercises, activities, guidance, walking, meditations, yogas, some of the few, stretches, home exercises, free hand exercises definitely will help you to reduce the weight. एंड चेकिंग करना, हाँ, जैसे कि हम डायबिटीज में शुगर चेकिंग करते हैं वीकली या हफ्ते में 2 दिन, जैसे कि हम मैनेज करते हैं या फिर चेक करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, वैसे ही अपना वेट भी हम हफ्ते में एक बार चेक कर सकते हैं। बेस्ट टाइम ऑफ चेकिंग द वेट इज कि आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में करो तो ज्यादा अच्छा एकदम अप्रोप्रिएट रीडिंग आता है। एंड डू चेक 3 टाइम्स, उसके बाद जो एवरेज है उसको अपने पकड़ना है फॉर द अप्रोप्रिएट वेट। Great. Thank you so much for sharing that. One common question we have come through is that, HbA1c and its importance. How is HbA1c important, and how is it going to help users keep a track of blood sugar? यस, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो हाँ, फास्टिंग और पीपी तो हम एक्यूची की ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं, हमें पता है, हम फास्टिंग करते हैं, हम पीपी करते हैं, पोस्ट प्रांजल करते हैं। बट HbA1c टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जेनेटिक शुगर का स्टेटस हमें डिनोट करता है। फास्टिंग और पीपी इज वेरी मच मील ओरिएंटेड, खाने के ऊपर डिपेंड होता है आपने क्या खाना खाया है अगले दिन या फिर नेक्स्ट डे, दैट पर्टिकुलर मिल, व्हाट हैव यू टेकन, उसके ऊपर डिपेंड होता है। HbA1c से क्या है ना, आपका जो मेहनत है, अगर यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, तो वो 3 महीने का जो रीडिंग्स आता है उसमें दिखेगा। एंड उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली व्हाट यू आर मैनेजिंग, व्हाट इज योर शुगर स्टेटस। Great. Thanks for that. We have one user, Jitendra Singh Ji from Bhopal. He wants to know what is the correct range of blood sugar for fasting, post meal, and random, because I get confused when I see my reports in the machine and in the lab. Acha, hi Jitendra, good evening. Yes, you have told me also about that during the counseling calls. So yes, the same answer is for that when I have told you कि फास्टिंग का जो रोज रेंज होना चाहिए, पहली बात तो है आपका वेट थोड़ा मेंशन करना होगा। हाइपो के लिए रेंज शुड बी 70 से नीचे हमें नहीं जाना होगा। लेकिन आपका वेट अगर बहुत परफेक्ट है, हेल्दी BMI है, तो 70 तक भी हमें नहीं करना है, 80 विल बी द गुड वन। और अगर आपका वेट थोड़ा ओबेसिटी है या फिर ओवरवेट है तो 70-75 के नीचे हमें नहीं जाना है, दैट विल बी हाई। हाइपर के लिए 130-140 हमें क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। पीपी के लिए भी सेम, हम 140 क्रॉस नहीं करेंगे। वी हैव टू बी वेरी मच वेरी मच कॉशियस अबाउट दैट कि हमारा रेंजेस 130-140 के बीच में रहना चाहिए। रैंडम के लिए भी हम क्या करते हैं ना, रैंडम के लिए वी डू नॉट प्रेफर द हमने क्या खाना खाया है, क्या खाने के बाद वी डू चेक इट एनी टाइम। सो वो भी 120, 100, 130 के आसपास या 140 के नीचे अगर होता है, दैट विल बी परफेक्ट रेंज। एंड कम टू द लैब पार्ट, थोड़ा आई थिंक बहुत डिफरेंस अगर हो रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद द थिंग्स। लेकिन थोड़ा 10-12 रीडिंग्स या 4-5 रीडिंग्स अगर थोड़ा हो रहा है तो मे बी दैट इज अ सिचुएशन बेसिस और द आपने घंटे के ऊपर हिसाब होता है ना कि आप कभी भी जो आप टेस्ट कर रहे हो एक्यूचे के ग्लूकोमीटर से, उसके बाद आप लैब पे जा रहे हो, बीच में 1-2 घंटे का डिफरेंस हो गया, कुछ मिनट्स का डिफरेंस होगा, मे बी दैट विल लिटिल बिट ऑफ फ्लैक्चुएटिंग। सो उसके वजह से शायद हो सकता है। अगर बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं प्लीज डू लेट मी नो, लेकिन लैब के ऊपर भी डिपेंड करता है, हर एक लैब का अलग अलग रीडिंग्स होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। तुझा, इफ यू कैन ऐड समथिंग फॉर योर एक्सपीरियंस। श्योर श्योर। सो जितेंद्र जी, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आप मीटर पे रीडिंग देख रहे हैं, उससे +20 -20 शुड बी द आइडियल रेंज इन द लैब रिपोर्ट। इफ इट्स गोइंग बियॉन्ड दैट, या तो आप एग्जैक्ट टाइम फॉलो नहीं कर रहे हैं,
जो फास्टिंग में होता है 8 आवर्स का गैप, पोस्ट मील में होता है 2 आवर्स आफ्टर फर्स्ट मील, उसका गैप, प्लीज इंश्योर कीजिए आप वो एग्जैक्ट टाइम पे मेंटेन करें और उसके बाद ही दोनों जगह पे रीडिंग्स ले, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर चेकिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स। यू नीड टू चेक द टाइमिंग। ऐसे भी हो सकता है घर पे आप 1.5 आवर में चेक कर रहे हैं, लेकिन लैब में आप जाते जाते आपको टाइम हो गया, बाय द टाइम यू चेक इट it's more than 2 hours. So that will create a huge difference in the reading. So ensure both the time when you check should be exactly 2 hours after meal, 8 hours post your last meal for fasting, and random should be any time post 1 hour of eating any meal or snack. Okay, please follow this and it will definitely help you manage your blood sugar levels. You can talk to your health coach for more information, and we can connect offline also to discuss about this in detail. All right. So with this, we do not have any other questions for today. I think it was a very fruitful session, and I want users to benefit the most from this, Madhurima ji. And that's the reason I want you to summarize today's session in 5 points. What are the top 5 points which you started, in your routine, or which users should start in their routine, and that is going to help them? Yes, yes. Definitely, from today's session, our takeaway will be our key pointers, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया. So हम 1, 2, 3, 4 करके वो pointers को सिर्फ याद करते हैं. I think that will be okay to get some takeaway for the session. Number 1 is healthy eating habits. Okay, eating habit proper होना चाहिए. We know the parameter: choice, timing, quantity, balance, length. Then number 2, portion control. Fiber, protein, fat, carbs. What will be the percentage? That should be in control. Then next is regular physical activity. Check with physical mobility. It is poor, perfect, or not. Then choose your physical activity based on your body's understanding. Next, importance of weight management. Check your BMI. Check it is overweight or obese. If it is overweight, please check. This is the right time to manage your weight. If it is obese, be range thoda ghatana hai. You have to reduce your weight gradually. Then also do check your diabetes levels. Next is monitoring blood sugar levels. The way I have suggested: breakfast oriented fasting PP, lunch oriented fasting PP, dinner oriented fasting PP. In this way, please do check your blood sugars. I'm damn sure I'm telling you now, this will definitely help you. When and where you have to walk, either in breakfast or in lunch or in dinner. Next is medication and insulin. To check your medications, medication handling is very important. Same for the insulin handling, dosage, units, fluctuations, changes after a year, after a certain time. There should be change in medication and insulin. Do talk to your doctor. Proactiveness regarding these two things is very, very important. Stress management. Please work on that. I have given you our tips also. Bathing water में coffee powder डालना. Please you do it. Huh? I will be waiting for all of your response कि कैसा रहेगा ये response. Please do apply it as soon as possible. Then quality sleep. 8 to 9 hours sound sleep with proper sleep management way. Avoid things what we should avoid before sleep. That is very, very important. Importance of hydration. 10 to 12 glasses for an entire day. That should be fluid intake. Water will be primary choice. Next, regular medical checkups. Do not forget to visit your doctor at a time. Do not miss your health counseling calls with your health coaches. It will definitely help you. Time to time maintenance and attendance for this case is also very important. Social support and understanding education. If you are knowledgeable, spread that knowledge among your colleagues, among your friends, among your families, among society. Your education is not only for you. This is for to share among all the needy people. Okay, so these are the takeaways, and this we have discussed. I think these are the very basic things, but we need to work on these basic things firstly. Then we can go for further things.
Great. Thank you so much, Madhurima, for such a lovely discussion with our users. I am sure all of them are going to benefit from today's session. To all our lovely AccuCheck Wealthy family, next week we are coming up with a new topic, a new set of information, and a new series for knowledge sharing. Till then, take care of your health and have a happy weekend. Thank you. Thank you. Happy weekend, all of you.